مشن یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کا ایک انسانیت کا نظام بنے جدھر ہم اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں. جو ہماری ریاست بن گئی ہے وہ اس کا الٹا ہے. یہ جانوروں کا نظام، حیوانوں کا نظام کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہمارا کوئی غلط کرے گا اس کو بھی قانون پکڑے گا. جو مرضی غریب امیر طاقتور کمزور جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. میں انشاءاللہ آپ کو ثابت یہ کر کے دکھاؤں گا. بلوچستان کے اندر ترقیاتی کاموں کو کیوں نہیں شروع کیا گیا؟ کیوں لوڈ شیڈنگ تک جو ہے نوبت پہنچی؟ روز ٹی وی پہ آ کے الزام تراشی کرتے ہیں. مجھے نقصان پہنچانے کی آڑ میں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے مخالفین کے اس رویے کا جواب دینے کے لیے، کوئی وقت نہیں ہے. انشاءاللہ ساری توجہ ہماری تعمیر و ترقی پر ہوگی، ساری توجہ ہماری غریبوں کی اور کسانوں کی اپ لفٹ میں ہوگی. اور انشاءاللہ جو مجھے نقصان پہنچانے کی آڑ میں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. بلوچستان کے اندر ترقیاتی کاموں کو کیوں نہیں شروع کیا گیا؟ کوئی جواب دے گا؟ پاکستان میں بجلی کا کرائسس کیوں پیدا کیا گیا؟ کیوں لوڈ شیڈنگ تک جو ہے نوبت پہنچی؟ آج تو لوگ بہتان بازی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہتان لگانا ان کا کام ہے، روز ٹی وی پہ آ کے الزام تراشی کرتے ہیں. کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ حکومت ہماری کوئی خدا نہ خواستہ کرپٹ ہوتی تو یہ منصوبے اس طرح سے بنتے. Pakistan People's Party has completed a great roadblock, has gone over a great roadblock to complete the democratic process. I congratulate the nation, I congratulate the parliaments. It is the philosophy of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in which we believe, which says democracy is the best revenge. We revenge democracy. She taught us how to live. She taught us how to do politics. She taught us how to lead us part. And I would like history to remember that the weak democracy has managed to take a 2/3 majority and make a president with a 2/3 majority, whereas آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی اکانومک ڈیولپمنٹ کے پروگرامز پر بات کریں گے. شروع سے اب تک پاکستان میں جس کی بھی حکومت آئی ہو ان سبھی کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو درست کریں گے. اس پر بات کرنے سے پہلے ہم پاکستان کی حالیہ صورتحال کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں. کچھ عرصے پہلے تک پاکستان کی 70% آبادی دیہاتوں میں رہتی تھی جو کہ کم ہو کر اب تقریباً 60% رہ گئی ہے. UNDP کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اربنائزیشن ریٹ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے اور اگر اس اسپیڈ کے ساتھ اربنائزیشن جاری رہی تو 2025 تک اربن پاپولیشن ٹوٹل آبادی کی 50% تک پہنچ جائے گی. پاکستان میں ٹوٹل 1,18,000 ولیجز ہیں اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا 63% بنتا ہے اور پاکستان کے بجٹ میں صرف 13% ان پر خرچ ہوتا ہے، یعنی 37% آبادی پر 87% بجٹ خرچ کیا جاتا ہے اور باقی کی 63% آبادی پر 13% بجٹ خرچ کیا جاتا ہے. اس 13% میں سے بھی کرپشن اور دوسرے حکومتی خرچوں کی وجہ سے صرف 7.5% پیسہ پاکستان کی 63% آبادی پر خرچ ہو رہا ہے. پاکستان میں حالیہ رپورٹس کے مطابق ٹوٹل آبادی کا 22% پاورٹی لائن یعنی خط غربت سے نیچے رہتے ہیں اور ان 22% میں سے 76% لوگ اس 60% آبادی کا حصہ ہے جو پاکستان کی ان ولیجز میں رہتے ہیں. پاکستان کے تمام ولیجز میں سے 26% ولیجز میں الیکٹریسٹی سرے سے ہی موجود نہیں ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں 1/4 ولیجز میں رہنے والے لوگ بجلی سے محروم ہیں. 20% ولیجز میں کوئی سکول نہیں اور اسکول کے کانسیپٹ سے ہی واقف نہیں وہ لوگ، اور 1,03,000 ایسے ولیجز ہیں جہاں بنیادی ہیلتھ یونٹس بھی موجود نہیں ہیں. 93% ولیجز میں
में सीवरेज का कोई निजाम मौजूद नहीं है, यानी तकरीबन 46% पाकिस्तानी टॉयलेट्स के निजाम से नावाकिफ हैं। 23% ऐसे विलेजेस हैं जहां आने जाने का यानी आमद रफ्त का कोई निजाम नहीं है। दूसरे अल्फाज में सिरे से कोई सड़क मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और अब बात करते हैं पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, जो कि बढ़ने के बजाय कम हुई है, क्योंकि पहले के निस्बत अब काबिल काश जमीन में 10 से 12% कमी आ चुकी है, क्योंकि हुकूमत अरबों रुपए मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स पर सब्सिडी देती है, मगर इन देहातों में बसने वाले किसानों के लिए बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं कर सके। इस्लामाबाद में बैठकर ये लोग यूटिलिटी स्टोर्स, कयामगाह, लंगर खाने और मेट्रो जैसी फजूल प्रोजेक्ट्स पर अरबों रुपए सब्सिडी देते हैं सालाना, मगर कसम पुर्सी की हालत में जिंदगी बसर करने वाले इन 60% पाकिस्तानियों के लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करते। पाकिस्तान की 1 लाख से जायद इन विलेजेस में से 46% विलेजेस ऐसे हैं जिन पर अगर कोई भी हुकूमत मुख्तलिफ गैर फाल नुकसानदाह खसारे में चलने वाले इन इदारों की टोटल सब्सिडी से 50% भी इन 46% विलेजेस पर खर्च करे तो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से पाकिस्तान के टोटल बजट का 7.5% रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और अर्बनाइजेशन में 15 से 20% तक कमी आ सकती है। हुकूमत की तरफ से कोई खास तवज्जो न देने के बावजूद ये विलेजेस तकरीबन 25% का हिस्सा पाकिस्तान की इकोनॉमी में डालते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से चाइना को सारी दुनिया रोल मॉडल समझती है। 2018 के एदाद व शुमार के मुताबिक चाइना की टोटल जीडीपी 13.6 ट्रिलियन थी, जो कि पूरी दुनिया की 1/6 जीडीपी की बराबर बनती है। 40 साल की मुद्दत में चाइना ने 850 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है, जो कि दुनिया की टोटल गरीब लोगों की आबादी का 75% बनता है। 1978 में चाइना में गुर्बत की शरह 98.5 थी और 2019 में 98.5 से गिरकर 1.4 तक आ चुकी थी। सिर्फ 2011 से 2019 के दरमियान चाइना ने सालाना 10 मिलियन लोगों को खतरे गुर्बत से निकाला था। इन तमाम की एक बुनियादी वजह है चाइना की 13 ट्रिलियन प्लस की इकोनॉमी में 60% कंट्रीब्यूशन चीन की देहातों की है, यानी 8 ट्रिलियन से भी ज्यादा चाइना की इकोनॉमी में विलेजेस का हिस्सा है। और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने के बावजूद दूसरे ममालिक के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पिछले चंद सालों से हर हुकूमत यही कह रही है कि सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में खुशहाली लाएगा। इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं कि जहां से इन सीपेक की सड़कें गुजर रही हैं, इन सड़कों के एतराफ की आबादी इंसानी बुनियादी हुकूक से भी महरूम है और खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि सीपेक से पाकिस्तान में इकोनॉमिक बेहतरी आएगी, मगर कितनी? सीपेक से अब तक 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा चुकी है, मगर पाकिस्तान की 70% आबादी अब भी बिजली की सहूलत से महरूम है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक पॉवर्टी लाइन से नीचे बसने वाले 85% लोग देहातों में रहते हैं और जिनमें हर बढ़ते साल के साथ इजाफा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने बजट का 87% सिर्फ शहरों में खर्च करती है और देही इलाकों को बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रखा जाता है। वो डेवलपिंग कंट्रीज जिन्होंने अपनी देही इकोनॉमी पर तवज्जो दी है, आज इन कंट्रीज की ग्रोथ रेट दूसरों की निस्बत बेहतर और ज्यादा सस्टेनेबल है। ब्रिटेन में टोटल पॉपुलेशन की 12% देहातों पर मुश्तमिल है। टोटल बिजनेसेस का 13% हिस्सा देहातों में है। एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में 10% जॉब्स देहातों में मुहैया है और ब्रिटेन की टोटल एक्सपोर्ट गुड्स में विलेजेस का हिस्सा 25% है। टूरिज्म इंडस्ट्री दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है, जबकि पाकिस्तान में 80% टूरिस्ट पॉइंट्स तक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ और साउथ अमेरिका और श्रीलंका और इंडिया टूरिज्म से सालाना अरब डॉलर कमाते हैं, जबकि पाकिस्तान में इनसे बेहतर और खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट्स मौजूद होने के बावजूद कुछ नहीं कमा सकता। और पाकिस्तान में सालाना अरबों रुपए से सड़कें तामीर की जाती हैं, मगर इन नई बनने वाली सड़कों में इन टूरिस्ट पॉइंट्स का हिस्सा 0.0001% भी नहीं बनता। इसी तरह शहरी आबादी को खुश करने के लिए ये लोग अरबों रुपए के सेहत कार्ड इशू करते हैं, जिनका हशर भी वही होगा जो बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड का हुआ था, मगर इनके कुछ हिस्से से किसी विलेज में कोई
एक बुनियादी हेल्थ यूनिट नहीं बनाया जाता। जब डॉक्टरों से कहा जाता है कि आप वहीं जाकर आवाम की खिदमत करें जहां के कोटे पर आपने डॉक्टरी की डिग्री ली है, तो सारे सफेद कोटों में मलबूस काली बेड़े हड़ताल पर चली जाती हैं और हमारी हुकूमतें घुटने टेक देती हैं। पाकिस्तान में हर चीज का एक अलग माफिया है। चोरी करने से लेकर प्राइम मिनिस्टर बनने तक सब माफिया के हवाले है और खाने पीने की एशिया से दवा तक सब माफिया कंट्रोल करते हैं, जो जब चाहे मसनूई बहरान पैदा कर दे और कीमत बढ़ा दे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।